ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم نے آیوروید کی دنیا کو دلایا حمایت کا یقین، کہا دنیا بھر میں آیوروید طریقہ علاج ہو رہا ہے مقبول۔ لیفٹیننٹ گورنر کی سربراہی میں شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کی میٹنگ منعقد، 28 جون سے ہوگی رواں سال کی یاترا شروع۔ وسیم رضوی کی طرف سے سپریم کورٹ میں قرآن سے متعلق دی گئی عرضی کی وسیع پیمانے پر مذمتوں کا سلسلہ جاری۔ دینی اور سیاسی جماعتوں نے وسیم رضوی کو سخت سے سخت سزا دینے کا سرکار سے کیا مطالبہ۔ اور جموں کشمیر میں کووڈ کیسوں میں قدر اضافہ درج، آج 3 مریض ہوئے لقمہ اجل۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آیوروید کی دنیا کو مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کل عالمی آیوروید فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے کرائی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوام آیوروید کے فائدوں اور قوت مدافعت کو بڑھانے میں آیوروید کے رول کو سمجھنے لگے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ عالمی صحت تنظیم نے بھارت میں روایتی ادویات کا عالمی مرکز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور دنیا بھر سے طلباء آیوروید اور دوسری روایتی ادویات کے مطالعے کے لیے بھارت آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آیوش طبی نظام کو فروغ دینے کے لیے قومی آیوش مشن شروع کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، جو کہ شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، نے آج بورڈ کی 40ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ یاترا 28 جون سے بالتل اور چندن واڑی دونوں راستوں سے بیک وقت شروع ہوگی اور 56 دنوں تک جاری رہنے کے بعد رکشا بندھن کے دن اختتام پذیر ہوگی۔ میٹنگ میں فیصلہ لیا گیا کہ روزانہ 1000 یاتریوں کو گفا میں درشن کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ یاتریوں کو بہتر سروس فراہم کرنے کے علاوہ یاتریوں کو دیے جانے والے انشورنس کور کو 3 لاکھ سے بڑھا کر 5 لاکھ کر دیا گیا ہے، جبکہ گھوڑے والوں کا بھی انشورنس کور 30,000 سے بڑھا کر 50,000 کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پجاریوں کے مشاہرے میں بھی 500 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اس موقع پر ہدایت دی کہ یاتریوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے جدید آلات اور ماہر ڈاکٹروں کی خدمات بہم رکھی جائیں۔ انہوں نے ٹیلی کام حکام سے کہا کہ وہ بہتر سروس فراہم کرنے کے علاوہ اپنے تمام بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنائیں۔ ساہتیہ اکیڈمی نے سال 2020 کے لیے ایوارڈ حاصل کرنے والوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ جموں کشمیر کے ڈوگری اور کشمیری کے 2 قلمکاروں کو اس ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ڈوگری کے لیے گیان سنگھ اور کشمیری کے لیے ہردے کل بھارتی کو اعزاز عطا کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ حاصل کرنے والے جموں کشمیر کے قلمکاروں، شعراء اور ادباء کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ ایسی شخصیات سے سیکھ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں تاکہ مقامی تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ ادب اور کلچر کو فروغ حاصل ہو سکے۔ مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے آج ورچوئل طریقے پر آزادی کے 75 سال پورے ہونے کی تقریب آزادی کا امرت مہوتسو منانے کے لیے ملک کی 6 جگہوں پر نمائشوں کا افتتاح کیا۔ ان 6 جگہوں میں جموں، امپھال، پٹنہ، بھوبنیشور، پونے اور بنگلورو شامل ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر نے اس موقع پر مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کیا اور کہا کہ جدوجہد آزادی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے سے امرت مہوتسو کا بنیادی مقصد عوام تک پہنچانے میں مدد ملے گی۔ جموں کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے وسیم رضوی کے اس قدم کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے جو اس نے سپریم کورٹ جا کر قرآن کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کر کے اٹھایا ہے۔ انہوں نے تمام امت مسلمہ خصوصی طور سے جموں کشمیر کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ امن کا دامن تھامے رکھیں۔ بی جے پی کے ترجمان اور سینٹرل وقف بورڈ کمیٹی کے چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے وسیم رضوی کے بیان کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس بارے میں اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا اور ان سے کہا کہ وسیم رضوی نے جس طرح کا قدم اٹھایا ہے اس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ جموں کشمیر بی جے پی یونٹ نے آج پارٹی دفتر پر وسیم رضوی کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاجی پارٹی کارکنوں نے وسیم رضوی کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ ارے واہ، لیجنڈ کی بیٹ، اس سے میں کھیلوں گا۔ فیوچر بیٹنگ لیجنڈ میں۔ اس میں جس کا نام لکھا ہے بیٹ اسی کو ملے گی۔ ارے یار دیکھا، اگر اس پہ میرا نام نہیں لکھا ہوتا تو کتنی دقت ہو جاتی۔ اس لیے آر بی آئی کہتا ہے بینک اکاؤنٹ ہو یا بینک لاکر، اس میں نامنی کا نام ضرور درج کرے تاکہ آپ کی جمع پونجی اسی کو ملے جسے آپ نے نامزد کیا۔ آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی وسیم رضوی کی قرآن مجید کے تئیں مضمون کوشش پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ نے مرکز سے اپیل کی کہ وہ اس فتنہ پرور کے خلاف فوری قدم اٹھائے۔ جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض حمدانی نے کہا کہ مذہبی انتشار اور خلفشار پھیلانے کی پاداش میں وسیم رضوی کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔
PDF के चेयरमैन हकीम हमद यासीन ने भी वसीम रिजवी के कुरान मजीद से मुतल्लिक दिए गए बयान पर दुख का इजहार करते हुए कहा है कि इस तरह की बातें करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली मोहम्मद मागरे, जो कि जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं, ने आज मामर कंगन में मेगा लीगल सर्विसेज कैंप और जानकारी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीर करते हुए जस्टिस मौसूफ ने कहा कि समाज के कमज़ोर तबकों के लिए इंसाफ की फराहमी को मज़ीद आसान बनाने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। कैंप में ज़िले के कई जज साहिबान और वकला भी मौजूद थे। इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स श्रीनगर में आज आला तालीम महकमे ने IIM अहमदाबाद और NTPC स्कूल ऑफ बिजनेस के इश्तराक से एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का इनेकाद किया। इस मौके पर आला तालीम के कमिश्नर सेक्रेटरी तलत परवेज़, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी के अलावा कई सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कमिश्नर मौसूफ ने कहा कि सरकार कॉलेजों में इख्तिराई कोर्सों को मुतारिफ करने के लिए राहें तलाश कर रही है ताकि तलबा सनअती सेक्टर में रोज़गार पाने के अहल हों। मिलिटेंटों ने आज दोपहर बाद सोपोर के बस स्टैंड के करीब पुलिस पोस्ट पर एक ग्रेनेड दागा। पुलिस के मुताबिक ग्रेनेड निशाना चूक कर सड़क के किनारे फट गया, ताहम इस धमाके में किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। ग्रेनेड धमाके के फौरन बाद इलाके को घेरे में लेकर हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी गई है। DGCA ने मुल्क में कोविड केसों में इजाफे के पेश नज़र हवाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों से ताकीद की है कि वो कोविड-19 प्रोटोकॉल पर अमल पैरा हों। उन्होंने तमाम हवाई कंपनियों से कहा कि अगर कोई मुसाफिर मास्क के बगैर सफ़र करने की जिद करे तो उसको फौरी तौर पर जहाज़ से बाहर किया जाए। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के मजीद 99 मामले सामने आए और आज ही 3 मुतासरीन इस बीमारी से अपनी जान गंवा बैठे। सरकारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज सामने आए केसों के साथ ही जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के कुल मरीजों की तादाद 1,27,535 हो गई है, जिनमें से 881 अब भी सरगर्म हैं। बुलेटिन के मुताबिक आज 102 मरीज शिफायाब हुए हैं, जिनमें से 91 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 11 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। महकमे ज़राअत की तरफ से आज शुपिया में मेगा किसान मेला मुनाकिद किया गया। मेले का इफ्तिताह ज़िला तरक्याती कमिश्नर शुपिया सचिन कुमार ने किया। इस मौके पर महकमे ज़राअत ने किसानों के लिए आला मियार के सब्जियों के बीज, पनीरी और दीगर आला किस्म की मशीनरी भी फराहम करने के लिए स्टॉल लगाए थे। ज़िला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल ने SSP गांधरबल के हमरा सोनमर्ग का दौरा करके बर्फ हटाने के काम का जायजा लिया। वाज़ेह रही श्रीनगर सोनमर्ग रोड को गुज़श्ता दिनों नासाज़गार मौसम के चलते अचानक बर्फबारी के बाद बंद किया गया है। श्रीनगर में आज डायरेक्टर फिशरीज बशीर अहमद भट्ट ने महकमे की कारकर्दगी का एक मीटिंग में जायजा लिया। मीटिंग में तमाम जॉइंट डायरेक्टरों, चीफ प्रोजेक्ट अफसरों और वादी के तमाम जिला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर जारी तरक्याती कामों और मुख्तलिफ स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कुलगाम जिले के डाइट कॉम्प्लेक्स में आज इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज की तरफ से बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के सिलसिले में एक तरबती प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। प्रोग्राम के इनेकाद में यूनिसेफ का भी ताउन शामिल था और एडिशनल तरक्याती कमिश्नर शौकत अहमद रातर ने प्रोग्राम की सदारत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहन सागर ने पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम इक्तिसादी बदहाली के शिकार होने के अलावा बार बार की महंगाई से भी आजिज आ चुके हैं। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि इन मुश्किलात के बावजूद मरकजी हुकूमत अवाम कुछ कदम उठाते हुए प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने की कोशिश की, जो यहाँ के गरीब अवाम को मजीद गरीबी में धकेलेगी। एशिया का सबसे बड़ा बाग गुले लाला रवा माह की 20 तारीख के बाद आम लोगों और सयाहों के लिए खोला जाएगा। इस साल बाग में 62 अक़साम के तकरीबन 1500 मिलियन फूल खिलने की उम्मीद है। कोविड के पेश नज़र बाग की सैर करने वालों की हिफाजत के लिए बाग में मुतादिद थर्मल स्कैनर और ऑटो सैनिटाइज़र लगाए गए हैं। महकमे बागबानी के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने आज कंगन गांधरबल में नई तामीर शुदा ऑफिस बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर महकमे के कई सीनियर अफसरान के अलावा मुतअद्दिद बाग मालिकान मौजूद थे। इस मौके पर डायरेक्टर मौसूफ ने बताया कि सरकार इलाके के मेवा उगाने वालों को तमाम तर सहूलियात मैसर रखने की वादाबंद है। डिग्री कॉलेज खान साहिब बडगाम में एक सेमिनार मुनाकिद हुआ। इस सेमिनार में मुकर्रिरीन ने सूफियत पर तफसीली रोशनी डाली। ये सेमिनार नेशनल लेवल कश्मीर सोसाइटी, इंटरनेशनल शम्स फकीर कल्चरल सोसाइटी, कलशीपोरा खान साहिब और ज़िला इतलाती सेंटर बडगाम के मुश्तरका अमल से मुनाकिद हुआ। इस सेमिनार में प्रोफेसर शाद रमज़ान, ख्वाजा फारूक रिजू शाह और दीगर मुकर्रिरीन ने सूफीज़्म पर रोशनी डाली।
कुलगाम जिला अस्पताल में मरीजों को बर वक्त इलाज फराहम करने की गर्ज से ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट नस्ब किया गया। अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मुजफ्फर ने ऑक्सीजन प्लांट को अस्पताल में नस्ब करने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि जिन मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से परेशानी होने पर श्रीनगर के अस्पतालों में रेफर करना पड़ता था, अब इस प्लांट की बदौलत उस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ख़वातीन के आलमी दिन के मुनासिबत से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर में हफ्ता भर की तक़रीबात के आखिरी दिन आज कई मुक़र्रिरीन ने ख़वातीन के हुकूक और उन्हें बाइख्तियार बनाने के हवाले से मकाले पढ़े। तकरीब में SP श्रीनगर मोहतरमा सली शाह ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कुपवाड़ा में स्किल डेवलपमेंट के 4 सेंटरों का इफ्तिताह किया गया। भारतीय फ़ौज और ज़िला इंतज़ामिया के मुश्तरका कोशिशों से कायम किए गए इन सेंटरों में दीही ख़वातीन को मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत फराहम की जाएगी। आर्मी और इंतज़ामिया की इस कोशिश की इलाके के लोगों ने सराहना की है। मलंगपोरा पुलवामा के कृषि विज्ञान केंद्र में आज जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की तरफ से मगजबानी से वाबस्ता SC और ST ज़ुमरे के उम्मीदवारों के लिए स्किल डेवलपमेंट तरबियती प्रोग्राम के हवाले से एक तकरीब मुनाकिद हुई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर KVIB के CEO ने और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। वट्टपोरा बांडीपोरा में कल देर शाम आग के एक वारदात में 3 रिहायशी मकान आग की एक वारदात में खाकिस्तर हो गए। फायर ब्रिगेड अमले के मुताबिक उन्होंने जाए वारदात पर पहुंचकर आग को मजीद फैलने से रोका। पुलिस ने भी इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। श्रीनगर के खानियार चौक में ब्यूटी सैलून आग की वारदात में खाकिस्तर हुआ। DC ऑफिस शुपैया में आज दीही सतह के ताजरों के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम CSC गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड ने किया था। वर्कशॉप में दीही सतह के 110 CSC छोटे कारखानादारों ने शिरकत की। इस मौके पर स्टेट टीम मेंबरान ने ताजरों पर जोर दिया कि वह PMJAY सेहत से मुतल्लिक रजिस्ट्रेशन अमल में सूरत लाएँ। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की इन्फोर्समेंट विंग ने आज आशाई बाग और सईदा कदल में नाजायज़ तौर तामीर किए गए ढांचों को मुनहदिम किया। इसके अलावा महकमे ने रंगर स्टॉप सईदा कदल के करीब उस जगह पर भी काम को रोका जहां गैर कानूनी तौर पर मिट्टी की बराई की जा रही थी। इस कार्रवाई के दौरान कई शरपसंद अनासर ने खलल डालने की कोशिश की, तहम पुलिस पार्टी ने शरपसंदों की इस हरकत को नाकाम बना दिया। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज दोपहर को गाड़ियों की आमद-रफ्त बहाल हो गई, जिस दौरान शाहराह पर दरमांदा गाड़ियों को श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त दी गई। दरियासना ADG ट्रैफिक के मुताबिक कल मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में छोटी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त होगी। ताहम उन्हें सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक नगरोटा और सुबह 6 बजे से 1 बजे तक उधमपुर क्रॉस करना होगा। शाहराह पर नाशरी और रामबन के दरमियान रुकी पड़ी बड़ी गाड़ियों को ही श्रीनगर की तरफ आने दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में लगभग 4 दिन की मूसलाधार बारिशों के बाद कल शाम से मौसम में बेहतरी आई है और महकमे मौसमियात के मुताबिक कल शाम तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। इसी दौरान पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिशों की वजह से दिन और रात के दर्जे हरारत में कमी वाक़ हुई है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 10.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।